Today's lecture is based on partners capital account. Partner capital account are maintained on two systems, that is fixed capital account system or method of fluctuating capital account method. Here you can see this is partner capital account. Partner capital account maintaining following fixed capital method and fluctuating capital method. Now, in case of fixed capital method, we are preparing two accounts, partner's capital account and current account. While in fluctuating capital account method, we are preparing only capital account. Now, the question is arise what comes in capital account and what comes in current account under the fixed capital account method. In case of fixed capital account method, only two items comes in debit side and two items comes in credit side. Credit side items are opening balance or capital introduced in the beginning when partnership started or commence, partnership business commence, and second item is additional capital introduced. These both items, opening balance, additional capital introduced or capital introduced in the beginning of partnership firm or commencement of partnership firm, these two items will come in credit side, and debit side will come withdrawal of capital and closing balance of capital account. These two items will come in the debit side. Clear? Now other items where will come? The other items will come in current account. Current account opening balance will come in credit side or debit side. It means current account have both type of balance, debit balance as well as credit balance. So be careful if while preparing current account, if balance sheet depicts the balance in the asset side, then it will come in the debit side of current account, and liability side, then it will come in the credit side. And other items which are debited in the partner's profit and loss appropriation account, debit side. What comes in debit side? We have already discussed interest on capital, salary, commission, share of profit. These all items will come in the credit side of partner's current account, and in debit side will come drawing, interest on drawing, closing balance of capital of partner's current account. Current account is also capital, but because we are maintaining fixed capital, that's why working capital is called current capital or maintained in current account. Clear? Fixed capital comes in the fixed capital account, and the running capital or working capital will come in the current account. That's why closing balance will come in the credit side. If debit balance is more, then it will come in the credit side also. Then it means करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड में आ सकता है. ठीक है. लेट्स कैपिटल credited with further capital introduce, debited with drawing against capital. Clear? Now current account में क्या क्या आएगा वो भी एक बार देख लेते हैं. Debited with drawing against profit, interest on drawing, share of loss. These items will come in the debit side, and credit side remuneration, salary, commission, interest on capital, share of profit. These items will come in the current account. This is clearly shown. Now what comes in fluctuating capital method? In case of fluctuating capital method, capital account will prepare, only capital account will prepare, and in case of fluctuating capital, ओपनिंग बैलेंस कैन बी कम इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड में आ सकता है. इसके बाद अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो वो क्रेडिट साइड में आएगी. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस विल कम इन क्रेडिट साइड. रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, these all items
जो हमने अभी डिस्कस किए थे करंट अकाउंट में, अब वो सब हमारे कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में आएंगे। नाउ डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में आएगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड लास्ट शेयर ऑफ लॉस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। दीज ऑल आइटम विल कम इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या रहा है, उसी हिसाब से हम कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करेंगे। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हम अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? अब ध्यान रखने वाली बात और क्या जरूरी है, ध्यान रखने वाली बात ये भी जरूरी है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। यदि ये क्रेडिट बैलेंस है तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और अगर डेबिट बैलेंस है तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे असेट साइड। क्लियर? इस प्रकार से फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हमने देख लिया, और कैसे इसको हम मेंटेन करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट। जो भी हमने डिस्कस किया था उसको भी हम डिस्कस कर लेते देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए 3 पार्टनर है XYZ, तो इनका बैलेंस आ गया ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद जो एडिशनल कैपिटल आई है वो आ गई तीनों पार्टनरों की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन आ गया, सैलरी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस आ गया जो कि प्रॉफिट का है। इसी प्रकार से डेबिट साइड देखेंगे, बैलेंस BD अगर ओपनिंग बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो आ जाएगा। इसके बाद बैंक अकाउंट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर किया है तो आ जाएगा, ड्राइंग किया हुआ है अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर लॉस अगर हुआ है फर्म को तो वो हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, लास्ट में हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें आप देखेंगे मैंने आपको बताया था 2 ही आइटम आएंगे, ये आपका बैलेंस आ गया ओपनिंग बैलेंस, और ये कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। इसी प्रकार से कैश और बैंक अकाउंट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो डेबिट साइड में आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस, बस 2 आइटम डेबिट साइड 2 आइटम क्रेडिट साइड। बोर्ड में कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट 2 आइटम कम्स इन डेबिट साइड एंड व्हाट 2 आइटम्स कम्स इन क्रेडिट साइड। तो आपका आंसर अब आपको पता है कौन से 2 आइटम डेबिट साइड में आते हैं, कौन से 2 आइटम क्रेडिट साइड में आते हैं। अब बचे हुए जितने भी आइटम्स है जो अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने देखा था वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, वो सारे आइटम हमारे यहाँ पे क्रेडिट में आ गए। डेबिट साइड में कौन सा आएगा, डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग बैलेंस, यदि कोई करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। इसके बाद में ड्राइंग किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अगर किया हुआ है अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो आपका करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में आ जाएगा। लॉस अगर हुआ है तो उस केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता है, और वो आपका डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और लास्ट में आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल करके आ जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस आपका इधर भी डेबिट साइड में भी आ सकता है और क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर? इस प्रकार से हमारे दोनों मेथड के अंदर हमने कैपिटल अकाउंट को डिस्कस कर लिया, और हम इस प्रकार से इनको मेंटेन कर सकते हैं।